So let us discuss Herd's experiment. So this experiment was done to show that accelerated charge generates electromagnetic waves. Okay, so this experiment was done. Okay, this experiment was done. This experiment was done to prove that the accelerated charge generates electromagnetic waves. Okay. Okay. So you can say this was the first experiment. It was the first experimental demonstration. Okay, it was the first experimental demonstration of electromagnetic waves. Okay, so electromagnetic wave radiation as well as detection, as well as detection of electromagnetic. All right. Okay, so what was that experiment? Let us see that. What was the experiment? So there are two plates, metallic plates. ये देखो आप, there are two metallic plates. So this is the plate one. This is plate one, and then there is another plate here, plate two. So these are two metallic plates. Okay, so they will behave like capacitors. I'll call it P1 and I'll call it P2. Okay, और यहाँ पे हम लोगों ने कनेक्ट किया है, इस तरह से हम लोगों ने कनेक्ट किया है, यहाँ पे मेटालिक स्फीयर्स लगाया है, ठीक है, we have connected metallic spheres. Okay, so we have connected this. This you can call as X and this you can call as Y. Okay, तो first I'll write it down कि हमने क्या क्या किया यहाँ पे. तो यहाँ पे जो है सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो P1 P2 है, ठीक है, P1 P2 ये क्या है? These are plates, metallic plates. These are the metallic plates and they will behave like a capacitor. They will behave like a capacitor. Alright. So they will behave like a capacitor. Okay. And ये जो XY आपको दिख रहा है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, ये बहुत कम है, ठीक है. The separation between the spheres, the separation between the spheres is very less, ठीक है, is very less. Okay, separation is very less. तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं एक हाई वोल्टेज सोर्स से. We are connecting this to capacitor with a high voltage source. Alright, we are connected with a high voltage source. And ये जो आपको दिख रहा है ना, ये और ये जो है, ये वाला, ये मेटल रॉड्स है. ये क्या है? These are metal rods. तो I hope आपको डायग्राम समझ में आ रहा होगा. It's very simple. बहुत सिंपल है. दो प्लेट्स हैं, दो मेटालिक प्लेट्स है. ये जो आपको दिख रही है, ये मेटालिक प्लेट्स है. These are metallic plates. और ये मेटालिक प्लेट्स के बीच से ये रॉड है, जो मेटालिक रॉड है, और आगे ये स्फीयर है, वो स्फीयर भी मेटालिक है, ठीक है. तो सब मेटालिक है. ओके, और इसके बीच में स्पेस बहुत कम है, जो सेपरेशन है बिटवीन द स्फीयर्स इज वेरी लेस. और ये एक हाई वोल्टेज सोर्स हमने कनेक्ट किया है यहाँ पे, ठीक है. तो HV जो है, HV क्या है? तो यू कैन राइट डाउन, HV इज हाई वोल्टेज सोर्स. This is basically a high voltage source. So this is a high voltage source. Okay. Okay. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना X और Y, तो X और Y के बीच में जो एयर है उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है. ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये पॉइंट लिखते हैं. तो ड्यू टू स्मॉल सेपरेशन,
due to small separation due to small separation between the spheres क्या होगा? The high electric field between the spheres, the high electric field, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, so the high electric field between the spheres will cause dielectric breakdown of air, वो air को आयनाइज कर देगा, will cause dielectric breakdown, ये हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, will cause dielectric breakdown of air। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का, फिर से समझाऊंगा, डोंट वरी। So it will cause a dielectric breakdown of air, ठीक है, and what will happen, and there will be electric spark, ठीक है, so due to this what will happen, and thus the spheres will be ionized, and thus we can say electric spark is produced, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। सो आप लोग प्लीज यहाँ तक नोट डाउन करो, प्लीज नोट। स्पार्क कहाँ जनरेट होगा? स्पार्क यहाँ पे जनरेट होगा, यहाँ पे इसके बीच में, ठीक है, द स्पार्क विल जनरेट हियर, ओके, स्पार्क जो है वो यहाँ पे जनरेट होगा, ओके, वेरी गुड। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, तो जो इंडक्टेंस है, क्योंकि ये जो प्लेट है, आई जस्ट मेक अ सिंपल डायग्राम, तो इस प्लेट को हम लोगों ने यहाँ वायर से कनेक्ट किया, हाई वोल्टेज सोर्स से, HV से, और यहाँ पे ये रॉड है, ये स्फीयर है, ठीक है, ओके, थोड़ा ये प्लेट है और ये एक प्लेट है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो, ये जो वायर्स हैं और जो प्लेट है, ठीक है, और जो रॉड्स हैं, इनके बीच में एक इंडक्टेंस है, लेकिन बहुत छोटा इंडक्टेंस, वेरी लो इंडक्टेंस, ठीक है, देयर इज अ वेरी लो वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है। So we can write here the inductance between the plates, the inductance between the plates is very low, ठीक है, तो ये दिस इज समथिंग लाइक अ लूप, ओके, एक लूप के जैसा फॉर्म हो रहा है, तो एक कॉइल, ठीक है, इस तरह फॉर्म हो रहा है, तो जो कॉइल होता है अपना इस तरह से, उसका जो इंडक्टेंस, बट यहाँ पे दिस इज इंडक्टेंस इज वेरी लो, दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट कॉइल, राइट, so the inductance is very low, right, as what, as you know, all the rods, and the wires and the connecting wire, जो भी wires है, rods है, and all the connecting wires, they are conducting, okay? They are conducting, so inductance is ready। तो यहाँ पे एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर का यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे एक इंडक्टर और कैपेसिटर का यहाँ पे सर्किट बन रहा है, ठीक है, तो वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, कि यहाँ पे एक कैपेसिटर और एक छोटा सा इंडक्टर, एक LC सर्किट बन रहा है, ठीक है, दिस इज L, दिस इज C, C इज द कैपेसिटेंस, जो भी यहाँ पे इस प्लेट के बीच में जो कैपेसिटेंस है वो, ओके, ये कंडक्टिंग प्लेट्स है, कंडक्टिंग प्लेट्स, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस तो होगा ही होगा, और ये जो आपको वायर्स और रॉड्स दिख रहे हैं, इसका खुद का एक छोटा इंडक्टेंस भी होगा, तो बेसिकली यहाँ पे इट विल बिकम, इस तरह का एक सर्किट बन जाएगा, LC सर्किट। तो हम लोग कह सकते हैं कि this experimental setup will behave like an LC circuit, will behave like an LC circuit,
ठीक है, पैरेलल सर्किट, क्योंकि जो इंडक्टेंस है वो भी P1 P2 के बीच में, कैपेसिटेंस है वो भी P1 P2 के बीच में। ठीक है, तो सब लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लो, एवरीवन प्लीज नोट डाउन टिल दिस पॉइंट। तो आपको याद होगा हम लोगों ने एलसी सर्किट डिस्कस किया था ईएमआई चैप्टर में, तो हमने ईएमआई चैप्टर में डिस्कस किया था। तो उसमें जो ऑसिलेशन है, राइट, आपको याद में दिलाता हूँ, इंडक्टर, कैपेसिटर, तो जो चार्ज है वो चार्ज ऑसिलेट करता है, राइट। तो इधर से इधर जाता है चार्ज, फिर वापस इधर से इधर आता है। तो ये जो ऑसिलेशन है इसका जो फ्रीक्वेंसी है, राइट, तो इसका ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, oscillation frequency of LC circuit, ये LC सर्किट जो है, ठीक है, इसका ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी आपको याद होगा, ये आया था 1/2π√LC, ये हमने डिराइव किया था EMI चैप्टर में। तो अगर आप इसमें वैल्यूज देखोगे तो L का वैल्यू बहुत छोटा है, ठीक है, L जो है इंडक्टेंस, दिस इज वेरी स्मॉल। सिंस L इज वेरी स्मॉल, तो क्या होगा, तो जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा होगा। ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस LC सर्किट, दिस विल बी वेरी वेरी हाई, विल बी वेरी वेरी हाई। So this oscillation frequency will be very very high and almost ये होता है आपका 10⁻⁷ हर्ट्ज, ठीक है, 10⁻⁷ हर्ट्ज जो इस रेंज का रहता है, वेरी वेरी हाई। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ ये जो दो मेटालिक आपको स्फीयर्स दिख रहे हैं, मेटालिक स्फीयर्स, ये दो मेटालिक स्फीयर्स के बीच में भी जो चार्ज है वो चार्ज ऑसिलेट करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये आयनाइज हो चुका है ना। यहाँ पे जो बीच में एयर है वो एयर क्या हो चुका है, ये जो बीच में जो एयर है, ये जो एयर है, ये एयर हो चुका है आयनाइज, यानी इसका हो चुका है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो चुका है, ये इंसुलेटर से कंडक्टर हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया है इंसुलेटर से, ये क्या हो गया है, पहले इंसुलेटर था, अब क्या हो गया है, अब कंडक्टर हो गया है। तो वहां पे उसके बीच में चार्जेस का ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा, चार्जेस का। तो द चार्जेस विल स्टार्ट टू ऑसिलेट, चार्जेस will start to oscillate, will start to oscillate between the two spheres, between the two spheres, the charges will start to oscillate between the two spheres, okay, with the same frequency, with the same oscillating frequency। तो इसका मतलब अभी वो बहुत ही स्पीड से ऑसिलेट हो रहे हैं। So they will start generating electromagnetic waves. They will start generating electromagnetic waves in space. Okay, they will start generating electromagnetic waves in space. So this oscillating charges, this oscillating charges are highly accelerated. They are highly accelerated. So what? So they will generate electromagnetic waves. So what? So these charges will generate electromagnetic waves. ठीक है, everyone please note down till this point. If you have any doubt you can ask. Okay, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी, ये जो है यहाँ पे ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी, due to high frequency nature of electromagnetic waves. So due to high frequency of what, of variation
of electric field and magnetic field. Okay, so that is important. Due to high variation of electric field and magnetic field between what? Between these spheres. ये जो sphere आप देखें, so between these spheres, due to high variation of electric field and magnetic. यहाँ पे जो electric field है, तो magnetic field है. ये दोनों time varying है. ठीक है, because जो charge है वो charge accelerated है. इसके बीच में जो charge accelerate हो रहा है, accelerate इस तरह से जो accelerate हो रहा है, तो this is इसकी वजह से टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. सो ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज हैपनिंग? बताओ क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? Electromagnetic waves are radiated. Due to high variation of high frequency of various electric field and magnetic field of oscillating charges what is happening? Electromagnetic waves are radiated. Okay, electromagnetic waves are radiated. अच्छा, एक और चीज देखो आप यहाँ पे, अगर हम लोगों ने ये जो दो स्फीयर्स हैं, यहाँ पे, अगर हम लोगों ने इस दो स्फीयर्स के इधर एक डिटेक्टर कॉइल लगा दिया, डिटेक्टर कॉइल, ये एक डिटेक्टर कॉइल अगर हमने ऐसा लगा दिया, ठीक है, इफ वी प्लेस अ डिटेक्टर कॉइल लाइक दिस, ठीक है, तो इन द सेम प्लेन ना, इसी प्लेन में, ये जो प्लेन है इसका, इसी प्लेन में अगर हमने रख दिया, सेम प्लेन में, तो इससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, इससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये जनरेट हो रहे हैं, तो क्या होगा? तो दिस कॉइल विल इंटरसेप्ट दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, ओके. तो क्या होगा? ये जो कॉइल है, ये जो आपको कॉइल दिख रहा है कंडक्टिंग कॉइल, ठीक है, तो ये हमने क्या लिया है? हमने लिया है कंडक्टिंग कॉइल. तो इस कंडक्टिंग कॉइल में क्या होगा? इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, और इसमें करंट सेटअप हो जाएगा. तो उससे हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हुए. व्हाट विल हैपन? so EMF will be induced, and what? And induced current, okay, EMF will be induced and then a current will be generated, in the coil. तो हम वहां से इन द कॉइल, तो वहां से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वहां से हम देख सकते हैं कि अच्छा, इसका मतलब EM वेव जनरेट हुए थे, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वेर जनरेटेड. तो यहाँ पे मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि पॉइंट क्या है. देखो बच्चों, तो पॉइंट ये है कि if we place a detector coil, ठीक है, if we place a detector coil in such a way that if we place ये क्या है? ये है डिटेक्टर कॉइल. So if we place a detector coil, such that, right, such that the gap is parallel, right, such that the gap of detector coil is parallel to the spark gap. This is called a spark gap. ये जो आप देख रहे हो, इसको हम लोग spark gap कहते हैं, कि यहाँ पे spark generate होता है. So this is parallel to the spark gap, ठीक है. Then what? Then EM waves will be detected. ठीक है. बट अगर आपने इसको परपेंडिकुलर रख दिया, जो परपेंडिकुलर टू द स्पार्क गैप, तो आपको इसमें EM वेव डिटेक्ट नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना, दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर. ठीक है, आप ये लिखो, फिर मैं समझाता हूँ आपको. प्लीज नोट डाउन टिल दिस पॉइंट. तो मैं आपसे ये कह रहा था कि इफ द डिटेक्टर कॉइल इज परपेंडिकुलर, ठीक है, if the detector coil is perpendicular to what? Perpendicular to the spark gap,
then it will not be able to detect the EM waves. Then it will not be able to what? Able to detect the EM waves. Okay, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए because EM waves are transverse in nature. Because electromagnetic waves जो है they are transverse in nature. इस एक्सपेरिमेंट से ये भी समझ में आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर. ठीक है, ओके.